shadow to my light. Did you feel us? Another star. Hello students of class 5th. Welcome to your English class बच्चे. Today in this video we are going to start our new chapter of Roots and Wings, that is Tom whitewashes the fence. Fine. This is the part 1. In the part 1 I will explain the story, and in part 2 I will discuss the exercises of this chapter. Okay? Okay, fine. Before starting the story, there is a short exercise. Get set. Okay, at first we will do that one, then we will start the story. See, match the books with their authors. Authors means what? Writer. Okay, those who write the book, they are called as author or writer. Fine. See, in the first column the name of the books are given, and in the next column name of the authors are given, and you have to match them. Okay, see the first one, A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities. This book is written by Charles Dickens. Who is the author of this book? Charles Dickens. So you will match the first one with the C option. Let me match it. First will be matched with C. Second one, Uncle Tom's Cabin. This book is written by Harriet Beecher Stowe. So it will be matched with option number B. Okay. B मतलब ये सामने ही हो जाएंगे. Third one, Pride and Prejudice. This book is written by Jane Austen. So it will be matched with the option number A. Third will be matched with A. Fine. In the fourth one, Celeste Marner. This book is written by George Eliot. Who is the author of this book? George Eliot. So it will be matched with option number E. Fourth will be matched with E. Okay. Now moving to the fifth one, 20,000 Leagues Under the Sea. This book is written by Jules Verne. So fifth one will be matched with option number D. Got it? Okay. If you want to match in your book, then just pause the video and then just do it. Fine. Now move to the story. Children, name of the chapter is Tom Whitewashes the Fence. It means in this story we are going to study about, in this story we are going to discuss about a boy whose name is Tom. ठीक है, जो इस बुक में जो कैरेक्टर है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई कैरेक्टर इसका नाम क्या है, टॉम होगा, है ना. हमें जो नेम ऑफ द टाइटल उससे पता चल जा रहा है. वाइट वॉशेज मीन्स व्हाट? वाइट पेंट करना. ओके, टू पेंट विद द वाइट कलर. फेंस मीन्स बाउंड्री, यू कैन से, या बॉर्डर. बाउंड्री जो होते हैं ना हमारे, जैसे गार्डन में होते हैं, चारों तरफ से हम लगाते हैं, उसे फेंस कह सकते हैं आप. तो या फिर घरों की चारों तरफ लगता है, दैट इज़ कॉल्ड फेंस. ओके, बाउंड्री. Okay, now moving to the explanation of this story. This story, Tom Whitewashes the Fence, it is written by Mark Twain, and Mark Twain is the pen name of Samuel L. Clemens. Okay, as you can see in the last, see, this story is adapted from the Adventures of Tom Sawyer by Mark Twain. It means who is the writer of this story? That is Mark Twain, and this story is adapted from the novel, that is the Adventures of Tom Sawyer. ये जो मार्क ट्वेन है, इट इज़ द पेन नेम ऑफ सैमुअल एल क्लेमेंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो ये इन्होंने एक नॉवेल लिखा है. ओके, और जो नॉवेल है दैट इज़ द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. ओके, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल रिटन बाय मार्क ट्वेन. और उसी से इस स्टोरी को क्या किया गया, लिया गया, अडेप्ट किया गया. इट इज़ टेकन फ्रॉम दैट नॉवेल. फाइन. And this Mark Twain, he was an American writer. Fine. He was an American writer, humorist, entrepreneur, publisher and lecturer. Okay. And he has written so many novels, and one of the most popular novels is The Adventures of Tom Sawyer. Okay. And which was written in 1876. ये जो नॉवल है वो कब लिखा गया था? 1876 में. और उसी में से की ये स्टोरी है, शॉर्ट सी स्टोरी ली गई है, अडेप्ट की गई है. ओके, which we are going to study now. So let's move to the story. Okay, now read and enjoy. It was a warm, bright Saturday. The sun was shining overhead. Tom and his cousin Sid were having a holiday. It was a day to enjoy, a day to have fun.
In this story, now we have come to know, we have what that there are two characters, Tom and his cousin whose name is Sid. ये इसमें जो अभी हमें 2 लाइन से पता चला है कि इस स्टोरी में, हाँ, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी इन बोथ लैंग्वेजेस, ओके, इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, फाइन, सो दैट यू कैंट हैव एनी प्रॉब्लम. जो कैरेक्टर्स में है टॉम, उसका उसमें एक उसका कज़न भी है जिसका क्या नाम है, सिड नाम है, फाइन. जैसे घर में आपके भी कज़न होंगे. अगर कज़न किसे कहते हैं हम, अगर आप अंकल के जो भी आपके बच्चे हुए वो आपके क्या कहलाएंगे, अंकल या आंट के जो बच्चे हुए आपके कहलाएंगे कज़न कहलाएंगे, है ना. चाहे वो पैटर्नल अंकल हो या मैटरनल अंकल हो, उनके जो भी बच्चे होंगे वो आपके कज़न कहलाएंगे, ओके. देन here it is telling that it was a warm bright Saturday. That what, which day was it? It was Saturday. Saturday का दिन था. And the what was the weather? How was the weather? It was warm, okay, and the sun was shining very brightly and it was overhead, means बहुत ही कड़ाके की धूप हो सकती है, आप कह सकते हो. It was summer time. और जो and Tom and his cousin, they were having a holiday that day. Saturday was their holiday, okay. And if it is a holiday then obviously it is a day to enjoy. अगर छुट्टियाँ होती है तो obviously कह सकते हो ना आपकी enjoy करने का दिन है ना. आप लोगों के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना. ऐसा थोड़ी कि टॉम के साथ ही ऐसा हो रहा है, ये सारे बच्चों के साथ होता है. दिस एन हॉलीडे, समझो वो enjoy करने का डे है. Got it? Okay, a day to have fun. Tom could hear the birds chirping in the trees. He was in a very cheerful mood. He was planning to go swimming with his friends. और जो टॉम है उसे क्या आवाज़, ही वॉज गेटिंग द वॉइस ऑफ बर्ड्स. द बर्ड्स वर चर्पिंग इन द ट्रीज, है ना. एंड द मूड ऑफ द टॉम वॉज वेरी चेयरफुल. ही वॉज इन वेरी गुड मूड, ओके. एंड ही वॉज प्लानिंग टू गो फॉर वॉट, फॉर स्विमिंग. और वो किस चीज़ की प्लान कर रहा था, स्विमिंग के लिए जाने के लिए विथ हिज फ्रेंड्स. वो सोच रहा था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाता हूँ स्विमिंग करने को, आज छुट्टियाँ हैं हमारी. ही थॉट ऑफ द कूल वाटर लॉन्गिंगली. What a great time they would have. Just then he heard Aunt Polly's voice. और वो क्या कर रहा था, he was just imagining, वो अपने सपनों में खो रखा था कि हम अगर जाते हैं तो क्या होगा, हमारे हम मस्तियाँ करेंगे, we'll be having the cool water and it will be our great time, है ना, it will be fun for us. But बस वो इतना सोच ही रहा था, तभी किसकी आवाज़ आती है, he is having an aunt whose name is Aunt Polly, okay. इसमें टॉम की एक आंट है जिसका क्या नाम है, आंट पोली. एंड देन शी स्टार्टेड कॉलिंग टॉम, है ना. शी वॉज कॉलिंग टॉम. सी, टॉम वेयर आर यू. दैट आंट वॉज कॉलिंग दैट वेयर आर यू टॉम. शी वॉज कॉलिंग हिम और पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो, ओके. कमिंग आंट पोली, ही कॉल्ड एंड रस्ड टू हिज आंट्स रूम. व्हाट डिड द टॉम से, दैट आई एम कमिंग. एंड जैसे ही उसने बोला यस आई एम कमिंग, वो फिर दौड़ता हुआ चला जाता है अपनी आंट के पास. आई वॉन्ट यू टू वाइट वॉश द फेंस टूडे, आंट पॉली सेड. व्हाट डिड आंट पॉली से हेयर, शी सेड दैट, शी सेड टू टॉम दैट यू हैव टू वाइट वॉश द फेंस, विच इज़ जो हमारा वो जो आंट पॉली वो कहती है जो हमारे बाउंड्री है उसे क्या करना है, यू हैव टू वाइट वॉश, मीन्स यू हैव टू पेंट इट विद द वाइट कलर, ओके. बिकॉज टुडे इट इज़ हॉलीडे and you are free, so you have to do this work. I'm giving you this work and you have to do it today, okay. See क्या होता है फिर. अब अगर आप मूड बना रहे हो कि कहीं घूमने जाना है, मस्तियाँ करनी है, और ऐसे आपको काम दे दी जाए तो कितना मूड ख़राब होता है ना. होता है कि नहीं भाई, मेरा तो होता है. अगर मुझे ऐसा, मेरे साथ ऐसा होता है ना, मैं बच्ची थी तो भी और मैं बड़ी हो गई तो भी मेरे साथ ऐसा होता है. आई होप कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा. ओके, अगर ऐसा होता है ना देन जस्ट कमेंट मी डाउन येस. अगर ऐसा होता है येस इट हैपन्स विथ अस आल्सो, आप लिख सकते हो एज योर विश अगर चाहो तो. बट वी वर प्लानिंग टू गो स्विमिंग. टॉम स्टार्टेड बट ही वॉज नॉट अलाउड टू फिनिश हिज सेंटेंस. और टॉम जैसे ही अपने बारे में बताता है कि हमने आज की प्लान क्या की है, टॉम स्टार्टेड सेइंग टू हिज आंट दैट वी आर प्लानिंग टू गो स्विमिंग. हमने प्लान की है स्विमिंग के लिए जाने के लिए. बट ही वॉज नॉट अलाउड टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस. बट वो पूरी सेंटेंस को बोल नहीं पाता है. एंड देन मे बी उसकी आंट चली गई हो वहाँ से, है ना. एंड मे बी उसकी जो आंट हो जो है वो स्ट्रिक्ट होगी. हाँ, शी इज़ स्ट्रिक्ट.
अब आगे पता चलेगा कि वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट थी, दैट्स वाई ही डिडंट से एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हर। यू कैन नॉट गो एनीवेयर। अच्छा उसने देखो उसने इतना बोला था, उसकी आंट ने सुना। अब देखो क्या कहती है उसकी आंट, यू कैन नॉट गो एनीवेयर, यू विल बी फिनिशिंग द वाइट वॉशिंग ऑफ द फेंस, आंट पोली सेड एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड द आंट पोली से, दैट यू कैन नॉट गो एनीवेयर, you are not allowed to go anywhere, you have to just finish this work which I have given it to you। तुम्हें क्या करना है, जो मैंने काम दिया उसे फिनिश करना है, फेंस को वाइट वॉश करना है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, तुम्हें मैं परमिशन नहीं देती हूँ कहीं जाने की। एंड आफ्टर सेइंग ऑल दिस शी वॉकड आउट ऑफ द रूम, शी वेंट फ्रॉम द रूम, शी वेंट आउट ऑफ द रूम, वो बाहर चली जाती है। एंड देन अलास टॉम्स विश कुड नॉट बी फुलफिल्ड नाउ। अलास, व्हाट इज दिस अलास? This is your interjection, right? You must have studied in class 3rd interjections, है ना? Alas is your interjection, okay? Then क्या होता है? Alas, Tom's wish could not be fulfilled. अब he was very much sad that जो Tom की जो wish थी वो fulfill नहीं होती, तो obviously वो sad होगा ना? All his plans were spoiled because all the plans were spoiled. That's why he was sad. He could not escape. Aunt Polly was strict. See, I told you na, she was a strict lady. Aunt Polly was strict and he had to obey her. अब क्या होता है कि अब वो अपने काम को छोड़कर भाग नहीं सकता, he could not escape, है ना? वो अपने काम को फिनिश के बिना नहीं उसे कहीं भाग नहीं सकता, वो कहीं नहीं जा सकता है। बिकॉज जो आंट पोली है ना, शी वॉज अ स्ट्रिक्ट लेडी एंड ही हैड टू ओबे हर, ही हैड टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस विच शी हैड गिवन। ही विल हैव फिनिश्ड द white washing by evening and after that he would not be able to go for swimming, and he was thinking that if I will start doing this then it will take much more time, है ना? And what will happen, it will finish in the evening time and I won't be able to go after that। जब मैं काम शुरू करूँगा तो ये ऑब्वियसली ये तो इतना सारा इतना बड़ा बाउंड्री है, इसे पेंट करते हुए तो शाम हो जाएगा और फिर मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा। शाम के बाद फिर कैसे जाऊँगा स्विमिंग के लिए? सारी जो प्लानिंग थी वो क्या हो गई, ऐसी की तैसी हो गई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही केम आउट ऑफ द हाउस सैडली विथ अ लॉन्ग ब्रश इन वन हैंड एंड अ बकेट फुल ऑफ वाइट वॉश इन द अदर। अब देखो बेचारे टॉम की क्या हाल हो रखी है। वो बाहर आता है घर से क्या लेकर, ही वॉज हैविंग अ बकेट, इन वन हैंड ही वॉज हैविंग अ बकेट एंड इन द अदर हैंड ही वॉज हैविंग अ लॉन्ग ब्रश फॉर पेंटिंग। एंड देन ही लुक्ड एट द फेंस इन डिसमे। अब वो क्या करता है, बड़ा ही दुखी होकर, इट मीन्स ही वॉज वेरी मच सैड एंड देन ही लुक्ड एट द फेंस। ओ गॉड, ऐसे वाला होता नहीं है कि ओहो अब इतना सारा पेंट करना पड़ेगा, इस तरह से उसकी मूड हो रखी थी। आप लोग ऐसे करते हो ना? हाउ हाई द फेंस इज़, हाउ लॉन्ग इट इज़, टॉम थाउट। अब वो सोच रहा था, ओ गॉड इतना लंबा सा फेंस है, इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, इट विल टेक मच मोर टाइम, है ना? द फेंस वॉज 9 feet हाई एंड 30 yards लॉन्ग। देखो कितनी लंबाई चौड़ाई थी इसकी, इट वॉज टू लॉन्ग। टॉम डिप्ड हिज ब्रश इन द वाइट वॉश एंड ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। It made a small white mark, and then Tom started doing the painting. He just started when he was dipping his brush in the whitewash and then drew it slowly across the fence. और जैसे उसने फेंस बाउंड्री पर वो एक ब्रश लगाया, देखा कि बस छोटा सा मार्क हो रहा है, मतलब थोड़ा सा हो रहा है एक बार में। भाई साहब अब ये क्या हो गया, अगर एक बार में बस इतना छोटा सा ही मार्क होगा, इतना छोटा सा ही पेंट होगा, थोड़ा सा होगा, तो ये तो क्या शाम क्या, ये तो रात हो जाएगी। अब इसे तो टेंशन हो रखी थी कि मैं तो पूरा थकने वाला हूँ आज, है ना? इट मेड अ स्मॉल वाइट मार्क, ही डिड इट अगेन एंड देयर वॉज अनदर स्मॉल वाइट मार्क। टॉम सैट डाउन wearily. It looked as though it would take the whole day and perhaps even the night to finish the work. Wearily means to be exhausted, to be tired very much, with extreme tiredness, कुछ ज़्यादा ही थक जाना, बहुत ज़्यादा थक जाना। अब जब इतना देखा उसने, 2 बार ही किया, तो उससे लगा कि भाई साहब अब तो मेरी हालत बुरी होने वाली है। वो इतना में वो थक जाता है 2 बार में ही, और वो क्या करता है, ही जस्ट सैट डाउन, वो बैठ जाता है और वो सोचता है दैट माई गॉड इट विल टेक लॉन्ग टाइम एंड इट विल टेक द होल डे, इवन एट नाइट आई डोंट नो इट विल बी फिनिश और नॉट। उसे ये भी शक था कि नाइट
रात तक भी अगर ये काम पूरा होता है कि होता भी है तो रात तक होगा या फिर और भी टाइम ले सकता है ये. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सी इन द पिक्चर, यही है वो बॉय, है ना, यही है टॉम. और ये जो टॉम है ना, बड़ा ही शैतान बच्चा है. ओके, ही वॉज एक्सट्रीमली क्लेवर बॉय हु लव्ड मिस्चीफ. क्लेवर भी है, शैतान बच्चे जो होते हैं ना वो क्लेवर भी होते हैं, है ना. एंड ही लव्ड मिस्चीफ, और वो बदमाशियाँ करने में बड़ा ही इंटरेस्ट रखता है. यही है आपका टॉम. देखो ये वाइट वॉश कर रहा है ना, पेंटिंग कर रहा है. ब्रश इसने ले रखा है, बकेट भी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. सी, आई हैव zoomed it. Okay. Now move to the next paragraph. Suddenly he saw Jim, the boy who helped his aunt with the tougher jobs in the house. Then suddenly what happened? अचानक से उसने he saw a boy, he saw his friend whose name is Jim, and he is that boy who helped his aunt when she was having a tougher jobs in the house. जब देखा उसने, अरे ये तो जिम जा रहा है, ये तो वैसा बच्चा है ना, ये वैसा लड़का है जो क्या करेगा, वो मेरी हेल्प कर सकता है. मतलब इसने इतनी भारी से भारी काम कर दी थी मेरी आंट की, तो ये वाला काम तो चुटकी में भर कर देगा ये. ही वॉज कैरिंग अ बकेट टू फेच वाटर फ्रॉम द विलेज पम्प. जिम, लेट मी फेच द वाटर while you whitewash the fence. And where he was going, where was Jim going? He was going to bring water. Fetch means to bring. Okay, he was going to bring water from the village pump. क्या होता है गांव में, पानी अगर आपके घर पे नहीं होती है तो आपको बाहर से लाना होता है ना. Then he was going to bring water. He was having a bucket in his hand. Then what Tom said to Jim, Jim, let me fetch the water while you whitewash the fence. It means he just wanted to exchange his job, है ना. He just wanted that Jim will whitewash the fence and I will bring water for him, है ना. I will do his job and he will do mine. वो सोच रहा था कि वो मेरा काम करे, मैं उसका काम करूँ. I will give you marble if you let me do it, Tom said. And what did Tom say? That if you do it, then I will give you marble. Okay, ये है ना करेंसी है वहाँ की. वहाँ की जैसे आप रुपीज़ बोलते हैं ना, वैसे वहाँ मार्बल उसने यहाँ वो यूज़ कर रहा है. ओके, एज ए करेंसी. तो उसने क्या कहा, इफ़ यू विल डू माई वर्क, इफ़ यू गिव इट टू मी, इट मीन्स इफ़ आई विल ब्रिंग वाटर फॉर यू, देन आई विल गिव यू मार्बल. तो मेरा काम कर दोगे, मैं तुम्हारा काम कर लूँगा ना, देन आई विल गिव यू मार्बल फॉर दैट, टॉम सेड. ओके, बिफोर जिम कुड रिप्लाई ही वॉज स्पॉटेड बाई आंट पोली एंड ही वेंट ऑन हिज वे. और जैसे ही जिम ने कुछ बोलना सोचा कि मैं कुछ, जैसे उसने सोचा रिप्लाई करे उससे पहले कि आंट पोली आ जाती है. एंड देन व्हाट हैपेंड, ही वेंट ऑन हिज वे. वो अपने रास्ते चला जाता, मतलब ही वेंट टू ब्रिंग वाटर फॉर हिमसेल्फ. Tom picked up the brush and started working hard, but he couldn't do it for long. He felt tired and bored. Now Tom again started doing work because Aunt Polly came. That's why he had to do it. अब वो बच नहीं सकता. Then he just picked up the brush and then started doing all the work. And then again he get tired. And he was feeling so bored also. Okay. Now moving to the next paragraph. After some time, he saw his friend Ben Rogers coming along the street. A brilliant idea came to his mind. After some time, what happened? Again, there was a boy coming, and he was Tom's friend, whose name was Ben Rogers. Okay. अब देखा कि अरे मेरा फिर से एक फ्रेंड आ रहा है. अब क्या उसने सोचा? There was an idea in his mind. अब उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक करती है. And what was that? See, Tom was very clever at getting what he wanted. He pretended not to see Ben, who was eating a juicy red apple. जो टॉम है ना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है दैट ही वॉज अ वेरी क्लेवर बॉय एंड ही लव्ड मिसचीफ, है ना. तो उसने, वो बड़ा ही क्लेवर था और वो हर चीज़ वो करवा लेता था जो वो चाहता था. देन व्हाट ही प्रिटेंडेड नॉट टू सी बेन एंड ही जस्ट स्टार्टेड एक्टिंग दैट ही जस्ट स्टार्टेड इग्नोरिंग बेन. उसने ऐसा कर रहा था, प्रिटेंड मीन्स इस तरह से करना, इग्नोर करना, कि बहाना करना कि जैसे मानो वो देख नहीं रहा उसे, अपने फ्रेंड को उसने देखा ही नहीं है. And what was Ben doing? He was eating a juicy and red apple. Okay, juicy and red. These are adjectives. ये क्या है? These are adjectives. Juicy, red. Now Ben came up to Tom and was surprised to see him working. When Ben came, then what he saw that Tom जो है वो he was painting and then he was very much surprised. Oh, ये Tom काम कब से करना शुरू कर दिया? He was very much surprised.
I'm going for a swim, but you can't come. Can you? You are working. There was a look of pity on Ben's face. Then what did uh, Ben say? Ben said that he was going for a swim, so उसने बोला टॉम से कि आई एम गोइंग फॉर अ स्विम, विल यू ऑल्सो कम? बट नो, यू कांट कम ना, बिकॉज यू आर वर्किंग, तुम तो काम कर रहे हो, यू आर डूइंग योर जॉब, तो हाउ कुड यू कम? और जो बेन था ना, ही वॉज हैविंग अ लुक ऑफ पिटी ऑन बेन्स फेस, इट मीन्स वो उसे थोड़ा सैडनेस वाली थी कि हाँ काश टॉम भी हमारे साथ चलता, बट इससे तो काम करना है, हाउ विल ही गो विथ अस? तो फिर देखो क्या होता है. दिस इज़ नॉट वर्क, टॉम सेड. वाइट वॉशिंग इज़ फन. यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड योर फेंस, हैव यू? देखो फिर टॉम ने क्या कहा, दिस इज़ नॉट वर्क, वट एवर आई एम डूइंग दैट इज़ नॉट वर्क, दैट इज़ जस्ट फॉर फन, वट आई एम डूइंग जस्ट फॉर फन, मैं तो बस इन्जॉय कर रहा हूँ. और उसने क्या कहा, यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड योर फेंस, हैव यू? क्या तुमने कभी किया नहीं ना, दैट्स यू डोंट नो. फिर उसने क्या पूछा, हैव यू, क्या तुमने किया है? देखो, नो आई हैवेंट. लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, टॉम. देन बेन आस्क्ड हिम दैट लेट मी डू इट आल्सो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैव सम फन. उसने कहा मुझे भी करने दो, मैं भी तो आता हूँ थोड़ा मस्तियाँ करना, थोड़ा फन करना, देखूँ जरा मैं भी करके. देन what Tom said, oh no, I have promised Aunt Polly that I will do it myself. She won't trust anyone else to do it. Sid wanted to do it, but she would not allow him. फिर उसने क्या कहा, Tom told to Ben that I have promised Aunt Polly, मैंने promise किया अपनी aunt से that this work will be done by only me, not by other, because she doesn't trust anyone. वो जो मेरी आंट है ना, वो किसी पर भरोसा नहीं करती है, दैट्स आई हैव टू डू इट बाई माई सेल्फ. इवन कि वो सिड पर भी उसने ट्रस्ट नहीं किया और उन्होंने उसे भी अलाउ नहीं किया, उन्होंने मुझे ही ये काम दिया है, इसलिए मैं कैसे तुम्हें दे दूँ. ही वाज जस्ट प्रिटेंडिंग. ओके, ये इसका बस जस्ट बहाना था. देखो अब यहाँ बैठ कर देखो टॉम अब क्या कर रहा है, वो देखो बैठ रखा है, कुछ खा पी रहा है, एंड देन ये जो पेंट कर रहा है ना, यही है बेन. आगे स्टोरी में पता चलेगा कि जो बेन है वो पेंटिंग करता है और ये बैठ कर आराम करता है. भाई साहब देखो क्या दिमाग है ना. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. आई शैंट मेक अ मिस्टेक, आई विल बी वेरी केयरफुल. सी, शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म इज योर शैंट, राइट. आपने क्लास 3 में पढ़ रखा होगा शॉर्ट फॉर्म्स. देयर वाज अ चैप्टर शॉर्ट फॉर्म, in that chapter it was given short form of shall not is shan't. Okay, I shan't make a mistake, I will be very careful. Who said these lines? Ben said that I will not do any mistake and I will be very careful in that work. Here, you can take my apple if you like, please let me do it, Tom now had been begging for a chance to whitewash the fence. अब देखो क्या होता है. Ben said that you just sit down and take my apple and eat it and let me do it, and I will be very much careful. I will not give you any chance that you will be feel that कि इसने जो किया है वो अच्छा नहीं किया. I will be very much careful in my work, I will not do any mistake. Who said? Ben said. Okay, please let me do it. He was just begging that let me do it. Okay, उसने वो रिक्वेस्ट किया, उससे बेग किया टॉम से, बेन ने कि मुझे करने दो ना प्लीज़ ना. वो ऐसे वाले नहीं करते बच्चे, बस उसने करना शुरू कर दिया. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन एंड सैट डाउन टू ईट द डिलीशियस एप्पल व्हाइल हिज फ्रेंड वर्कड इन द हॉट सन. अब क्या होता है, जो टॉम है ना, देन ही जस्ट हैंडेड दैट दोज ब्रश एंड पेंट्स एंड देन ही जस्ट सैट डाउन एंड देन जस्ट एंजॉइंग द ईटिंग एप्पल. और वो बैठ गया और वो क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था एप्पल खाते हुए, है ना. और वो जो उसका फ्रेंड था, ही वॉज वर्किंग इन द हॉट सन इन दैट समर डे, और वो इतनी कड़ी धूप में वो काम कर रहा था उसका फ्रेंड. सून अदर बॉयज केम अलॉन्ग विद देयर ऑफरिंग्स. बिफोर द आफ्टरनून वॉज ओवर द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट. अब क्या होता है, जब ये बेन कर रहा था ना, देन आफ्टर सम टाइम मैनी अदर बॉयज ऑल्सो केम, मीन्स अदर फ्रेंड्स ऑल्सो केम, और वो लोग भी क्या करते, वो लोग भी साथ मिलकर पेंट करना शुरू कर दिया उन्होंने. अब देखो 2-3 लोग मिल गए तो क्या होगा, पेंट करना जो क्या आसान हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, है ना. तो देन और बिफोर द आफ्टरनून वॉज ओवर द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट. और इससे पहले कि जो दोपहर है वो ख़त्म होती है, उसके पहले
जो फेंस है ना उस पर 3 कोट्स हो चुकी थी. टॉम वॉज द ओनर ऑफ 12 मार्बल्स, a tin soldier, a key, a dog's collar, the handle of a knife and 4 segments of an orange. अब देखो यहाँ जो टॉम है ना वो क्या हो जाता है, वो इन चीज़ का ओनर हो जाता है. ओनर मीन्स अब ये सारी चीज़ें उसके पास है. ओके, क्या क्या है उसके पास आप देख सकते हो. उसके पास 12 मार्बल्स हो गए. ओके, और जो टॉम था ना उसने उन लोगों से तो काम भी करवा लिया और बदले में उन लोगों से उसने क्या लिया, मार्बल्स लिया. फिर सोल्जर मीन्स ये लोग उनके सोल्जर बन गए एक तरह से कह सकते हो आप. मतलब कि उसने उसे चांस दिया फन करने के लिए ना, उन लोगों ने इसके बदले में ये पे किया. सोच सकते हो हाउ मच इंटेलिजेंट ही वॉज. He had cleverly got what he wanted by pretending to enjoy the work he was doing. Needless to say, Aunt Polly was delighted to see the fence looking so spotlessly white. देखो आप, he had cleverly got what he wanted. It means he was very much clever boy and whatever he wanted, he just took it. He just got it by pretending to enjoy the work. उसने क्या pretend किया था कि the work which I'm doing is not the work, it is just for fun, है ना. So everyone has just started everyone just wanted to do that. Then when it was finished, when the work was finished, when it was whitewashed, then Aunt Polly was very much delighted. It means she was very happy to see the fence because it was painted very much carefully. It was very much spotlessly. वहाँ कोई भी दाग धब्बे नहीं थे, अच्छे से पेंट हुई थी. It was very much clearly. That's why Aunt Polly was very much happy. She couldn't believe Tom had whitewashed the fence all by himself. She gave him a big apple to eat. But जो Aunt Polly थी ना, she was unable to believe that Tom had whitewashed all the fence by himself, because she knows, है ना, because she knew that Tom is not that type of boy who can do all the work by himself. So that's why she was unable to believe that he had done this by himself. She gave him a big apple to eat, and then in return of that, what she gave a big apple to Tom to eat. So this was the story, children. I hope you would have enjoyed the story. So have a good day. Bye bye. Now in the part 2 I will explain the exercises. Okay, ये जो exercises दिए गए हैं ना, सारे क्वेश्चन आंसर जो भी है मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी, डिस्कस करूँगी. फाइन. क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे दूँगी, आप पॉज करके वीडियो लिख भी सकते हो वहाँ से. सो हैव अ गुड डे. बाय बाय.